we have to walk backwards. So Abhishek, welcome to the podcast. Thank you. What is the one quality that differentiates great designers from like average designers out there? I think a great designer understands the brand first before getting into design. Cheap designer और expensive designer में यही फर्क है. Cheap designer will always try to make something look more beautiful. A good designer will understand कि कैसा बनाना चाहिए. Most of the times client does not know what is needed. जैसे आपने catalogs देखोगे, आप बड़े-बड़े factories के आप catalogs देखोगे, they're not so well designed, which is okay, works for them. क्यों? क्योंकि उनका जो end user है, जिनको वो catalog दिखा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता डिजाइन से. उनको प्राइसिंग अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, डिलीवरी टाइम पे चाहिए. When I see designing, मेरे ना top of the mind दो चीजें आती हैं, colors and fonts. How color psychology works and is it really effective? Let's talk about McDonald's and Maggie. दोनों yellow use करते हैं. Do you feel excited or do you feel happy? Let's talk about Fanta, Harley Davidson, JBL. Color psychology says yellow is for happiness and orange is for excitement. Blue basically commands trust. Starbucks uses a darker shade of green that symbolizes wealth. Apple, Gucci, Zara, Sony, Prada, Louis Vuitton, all of them using black. Black is for status and authority. So there's a reason why these brands are using these colors. Fad नहीं है, it really works. How much inspiration matter in great designing? जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है who wants to sell t-shirts. I would understand कि किस सेगमेंट को केटर कर रहा है. फिर मैं इंस्पिरेशन लूंगा कि मार्केट में कौन सा ब्रांड है या कौन से ब्रांड्स हैं जो सेम सेगमेंट को केटर कर रहे हैं और उनकी डिजाइनिंग कैसी है. So do you feel कि जैसे Apple जैसा ब्रांड है या कोई ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट बेस स्ट्रॉन्ग है, ब्रांडिंग उनकी सेल्स को एम्पलीफाई कर देता है? So it helps your sales but it does not create your sales. See, designers are available at all costs. Expensive भी है मार्केट में, cheap भी है. What is the business impact on sales of an expensive logo, of an expensive design versus a cheap one? So we see a lot of designers. There are a lot of designers out there. People are designing, and there are various designs we see. There are premium designs, minimalist designs, all kinds of the designs we see out there. What is the one quality that differentiates great designers from like average designers out there? So see, designing is very subjective, of course. Like you said, premium designers you've seen minimalist designs you've seen. I think a great designer understands the brand first before getting into designing. Got it. Once you understand what the customer of the brand, what the clients of the brand are asking from you, and then when you start designing, you design functional, you design functionally better designs. So those kind of designs which are given a thought to, सिर्फ ये नहीं कि सुंदर बनाने हैं. Once you put your thought into what the clients or what the brands customers want, and then you design, then your design is sales centric. Okay. It becomes sales centric designing, which sales is of course the main objective of any business. किसी भी business का main objective ये नहीं है कि सुंदर logo बने या सुंदर designs बने. हर business का objective है profits हो, sales हो. So when you're designing, keeping this in mind, that is when you differentiate yourself from average designers, and then that is when you actually become a great, not just a designer, you act like a brand strategist. You become the force that drives sales in a very subtle manner. That's if that answers your question. So it's like awareness about the how the client or how the prospect is, and like knowing what they need actually. That is what you are saying. Yeah. Got it. And what about like creativity and all those matters? Like those are, I guess, equally important, but something that is different, that is like that you see and you think you have that edge over others. There's this book called Steal Like an Artist. My favorite. Yeah, your favorite. So if you're looking to create something new, chances are you're gonna fail. Yeah. Nothing is new in this world. Anything you see around you, it has been inspired from something or the other, right? So great designers actually look for inspiration from designs, or from, if we are talking specifically about designing, from designs that have worked in the past. They improvise it, they put their own thoughts into it, they put their own specific agenda into it, जो भी client के requirements हैं, and then they make something new out of it.
So yeah, But I have this question, like if I'm starting right now and I am a designer, how can I know, like, uh, what was brand asking from this design and what the designer gave it to them? Like, can we study like what was asked and what was delivered on that? Because I guess people just study like inspiration, it's what is delivered, but what was asked and was it like matching that? Is there most discrepancy of the between them? times client does not know what is needed. Okay. Clients, see, if I have a client who, let's say, is into any specific, who is, suppose karo, can you name any service for me? uh okay, Any specific, any random service. let's say real estate. रियल एस्टेट, परफेक्ट. तो कोई रियल एस्टेट का अगर कोई क्लाइंट है तो ही नोज हाउ टू, he knows what properties are better for investment, he knows which locations are better, right? He knows who his clients are, he knows the client psychology, but he does not specifically understand ki the client resonates with what kind of designs he resonates with. Real estate का जो client है, he is looking for a lot of trust, strength, right? And based on these qualities, for trust or strength मैंने बात की. For trust, as a designer, if I'm designing for them, I'll be using a lot of blue and white. Okay. ठीक है, because brand psychology में ये होता है कि if I talk about, let's say, some brands that are using blue, Google Pay, Phone Pay, PayPal, Paytm, all of them are using blue. Yeah. Now all of them are in the same industry. Blue basically commands trust. हम पेटीएम यूज करते हैं, बैंक डिटेल्स डालते हैं, राइट? हम ट्रस्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ब्लू. सो ये चीज़ क्लाइंट को नहीं पता. क्लाइंट को ये पता है कि मेरे जो बेसिकली रियल एस्टेट की अगर कोई कंपनी है, उन्हें ये पता है कि दे नीड देयर क्लाइंट्स टू ट्रस्ट देम. ठीक है, ये भी कई बार क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती. Okay. So as a brand strategist, as a good graphic designer, we are supposed to understand कि क्लाइंट का क्लाइंट कौन है, उनको क्या चाहिए, एंड लाइक यू व्हाट यू आस्क्ड वाज कि हाउ डू यू कंपेयर कि क्लाइंट ने क्या मांगा और हमने क्या डिलीवर किया. तो क्लाइंट को नहीं पता उसने क्या मांगा. उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता उसने क्या मांगा है. उसने एक अच्छा लोगो मांगा है बस. So there are clients that I've had who are very clear with what they need, but most of them, with respect to the designing part, it is, as a graphic designer, as a good designer, it is my role to educate them on this. Why am I using this color? Why am I using this font? Why have I done something a certain way? Why have I designed an element in a certain way? ठीक है, and when we educate the clients on that, they are happy. So first one कि how to spot a great designer is like कि अगर वो डिज़ाइनर आपका समझ रहा है और आपकी नीड समझ रहा है, तो उस हिसाब से आपको समझा रहा है कि आपको क्या चाहिए पहले आके, क्योंकि क्लाइंट्स को यूजुअली नहीं पता होता कि व्हाट दे नीड, कि कौन सा हमें क्या दिखाना है. तो लेट्स से आई हैव अ बिजनेस, राइट? तो मुझे अपने बिजनेस के लिए एक डिज़ाइनर चाहिए फॉर माई लोगोज, फॉर माई पैकेजिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कोई है मेरा, लेट्स से कोई रिटेल में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है मेरा, ठीक है, एंड उसके अंदर मुझे लोगोज और पैकेजिंग चाहिए. तो मैं एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ओनर, कैसे, मतलब क्या क्वालिटीज़ मुझे एक डिज़ाइनर में देखनी चाहिए, लाइक व्हेन आई एम हायरिंग अ डिज़ाइनर और आई एम गिविंग समवन द प्रोजेक्ट, तो क्या टॉप क्वालिटीज़ होंगी कि एक मेरे को, मतलब वह मुझे पता लगेगा एज अ ओनर कि जिसको कोई नॉलेज नहीं है डिज़ाइन की, कि ये यार अच्छा डिज़ाइनर है और ये एक एवरेज डिज़ाइनर है, तो आई शुड गो विद अ ग्रेट वन. गॉट इट. हाँ. सी नाउ इसमें पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, आर यू आउटसोर्सिंग योर वर्क और आर यू हायरिंग, आर यू वांटिंग टू हायर इन हाउस? ओके. ठीक है, इफ यू आर हायरिंग इन हाउस कि एक डिजाइनर आए, मेरे पास डिजाइन का काम रोज रहता है, सो आई डोंट वांट टू आउटसोर्स. मैं चाहता हूँ डिजाइनर आए ऑफिस में आपके बैठे, एंड रोज आए, फिक्स टाइम के लिए आए, रोज जो भी आपको डिलीवरेबल्स चाहिए बना के दे. ठीक है. उसके लिए there's a different approach towards hiring. So उस केस में more than, I would say कि more than the person's skills, उसका अपना aptitude, उसका अपना willingness to improvise the designs, for example, या वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी कि एज अ पर्सन वो कैसा है. ऑफ कोर्स उसकी डिज़ाइन स्किल्स कम से कम डिसेंट होनी चाहिए, वाओ ना हो कोई बात नहीं, डिसेंट होनी चाहिए, ताकि ही कैन कम, he can understand your business. Basic skills उसमें होने चाहिए. He should be able to understand, he should be able to communicate well, very important. A designer is supposed to communicate nicely. He's supposed to understand what the other person is saying, and he's supposed to put that understanding into design.
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. हम्म. द अदर थिंग इज इफ यू आर आउटसोर्सिंग टू एन एजेंसी लाइक माइन, हाँ. ठीक है, उस केस में आई वुड से कि look at the portfolio, look at the portfolio of the company, या even if you are hiring in house, look at the portfolio of the designer, ठीक कि है. डिजाइनर ने पहले कैसे डिजाइन्स बनाए हैं, ठीक है. या फिर इवन बेटर इफ यू आर लाइकिंग, लेट्स सपोज आपने 50 कैंडिडेट्स बुलाए, आपने 10 शॉर्टलिस्ट किए, 8 शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से भी आपने एलिमिनेशन की, आपने 6 शॉर्टलिस्ट किए. उन 6 को, अब आपका जो भी बिजनेस है, आपने क्या बताया था, रिटेल, हाँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन हाँ रिटेल. रिटेल. तो जिस तरह के आपको डिजाइन कल को चाहिए होंगे, एक डिजाइन बनवा के देख लो उनसे, ओके. ठीक है. आई डोंट रियली लाइक लुकिंग एट resumes and all. I like looking at portfolios if I have to hire someone. Okay. Hire a graphic designer. ठीक है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमें वही चाहिए कि मैंने उसको ब्रीफ दे दी, क्लाइंट को ये चाहिए, बना के दिखा दे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेज की आप उसका, अगर आप एक एजेंसी हायर कर रहे हो, लेट्स से लोगो और पैकेजिंग के लिए मेरे को चाहिए, तो यूजुअली आई फील कि अब एजेंसीज लोग हायर करते हैं कि हमें एक प्रीमियमनेस में जाना एजेंसी है. हायर तो करने का बेनिफिट है, आप डिजाइनर हायर कर रहे हो इन हाउस, लेट्स सपोज आपकी सैलरी है आप 40,000 ऑफर कर रहे हो सपोज, ठीक है. जो एजेंसी का काम होगा वो 40,000 वाला काम नहीं होगा, वो 1.5 लाख वाला डिजाइनर बना रहा होगा आपका डिजाइन. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एक साथ, तो यू आर गेटिंग बेटर स्किल, ठीक है. ठीक है, एंड उनका रोज का काम है. सही है. बट अगर आपको प्रीमियम डिजाइनिंग नहीं चाहिए, अगर आपको एवरेज डिजाइनिंग चाहिए, लेट्स सपोज आपका B2B, आप मैन्युफैक्चरर हो, एंड आपका जो एंड कस्टमर है, आप बेसिकली बल्क में डील्स करते हो, B2B डील्स करते हो आप, ठीक है, B2C प्रोडक्ट नहीं है आपका, उस केस में आपको ना उतनी अच्छी डिजाइनिंग चाहिए नहीं होती, चाहिए ही नहीं होती. उसमें आपको, ठीक है, इफेक्टिवली कन्वे कर देना. जैसे आपने कैटलॉग्स देखोगे, आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज के आप कैटलॉग्स देखोगे, दे नॉट सो वेल डिजाइंड, विच इज ओके, वर्क्स फॉर देम. बहुत 500 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, कैटलॉग्स बहुत ही देसी, विच इज ओके. क्यों? क्योंकि उनका जो एंड यूजर है, वी हैव टू वॉक बैकवर्ड्स. जिनको वो कैटलॉग दिखा रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता डिजाइन से, उनको प्राइसिंग अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, डिलीवरी टाइम पे चाहिए, ठीक है. वी आर वॉकिंग बैकवर्ड्स नाउ, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो आप. करेक्ट. सो उस केस में यू हैव टू हायर इन हाउस, क्योंकि एजेंसीज में क्या होता है, इवन मेरी एजेंसी में भी कई बार ये होता है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कई बार डिले हो जाता है काम का, ठीक है. जब आपका काम स्केल पे है, आपको क्विक टर्न अराउंड टाइम चाहिए, आपको डिले नहीं चाहिए, चाहे डिजाइन उतना अच्छा ना हो. So again, we have to walk backwards. Okay. We were talking about like walking backwards. I think इससे आपकी जर्नी भी ट्रैक बैक कर सकते हैं थोड़ी सी. तो जब आप एक डिजाइनर के लिए मतलब स्टार्ट करे थे अपनी जर्नी, तो वो क्या जर्नी थी, एंड लाइक वर यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और वो कैसे आपने एजुकेशन ली, और मतलब हाउ यू गॉट इनटू डिजाइनिंग? Yeah, how designing found you? So I was not aware of any of what I just anything. मतलब ये सब मेरे को बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी. एंड ये तो बहुत टाइम बाद समझ में आया है. एंड स्टार्टिंग में एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, आई हैव आल्सो मेड मेनी मिस्टेक्स. जैसे कि आई डोंट थिंक लर्निंग का पार्ट था वो. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैं एडवांस पेमेंट नहीं लेता था, बिकॉज आई हैड द अंडरस्टैंडिंग कि आई एम न्यू इन द मार्केट, नोबडी नोज मी, सो व्हाई वुड दे हायर मी, which was I think right thinking. But gradually you have to change. Once I started getting work, and 2-3 बुरे experiences हुए पेमेंट्स को लेके सबसे ज्यादा. हाँ, तो फिर gradually we decided कि without advance हम काम करेंगे ही नहीं. हमने स्टार्ट किया 50% एडवांस से, अब हम 100% भी ले लेते हैं. People are happy to pay because now they trust us. उसके अलावा walking backwards वाली बात, ये भी शुरू में नहीं पता थी. सो शुरू में ऑब्वियसली वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, शुरू में मैंने ना पैकेजेस बना लिए थे, विच वाज द रॉन्ग अप्रोच टू इट, कि फिक्स्ड पैकेजेस बना लिए कि आपको इतना काम मिलेगा महीने में, इतना मैं चार्ज करूंगा, ठीक है. बट व्हाई दैट डजंट एक्चुअली वर्क इज बिकॉज एवरी क्लाइंट्स नीड्स आर डिफरेंट with respect to both the quantity and quality of work. So करते करते समझ में आ जाता है. So जब आपने शुरू किया तो what was your age उस टाइम पे जब आपने एजेंसी शुरू करी है? Was back in 2019, so I think I was 20 years old. Just past the college. I was in first year when I properly started. Okay. क्या किया आपने कॉलेज में? मैंने BBA किया SD कॉलेज से. अच्छा. बट मैंने क्लासेस अटेंड नहीं ही की है. मैंने हर सेमेस्टर में फाइन भरा है,
एंड Okay, मैं सही है। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के कर लेता था काम, हाँ, मैं क्लासेस नहीं अटेंड करता था. ओके, So ठीक है, I think it was right also, wrong also, but ठीक है, I have the degree, so it's okay. हाँ. So first year में you were doing designing only, I started off with photography. photography. Okay, Photography, yeah. I ventured into photography first, which did not work for me. okay. I'm not saying photography is not a good career. People are हम्म, earning बहुत अच्छा photography में. हम्म, It didn't work out for me. हम्म, मुझे खुद नहीं पता when I gradually shifted to social media. हम्म. ठीक है, सोशल मीडिया से आई ग्रेजुअली एंटर्ड द B2B, जिसमें जैसे ब्रोशर्स बनने हैं, कैटलॉग्स बनने हाँ, हैं. सही है. देन ग्रेजुअली आई शिफ्टेड टू प्रॉपर ब्रांडिंग, Okay, okay. व्हिच आई थिंक आई एम गोना स्टिक टू नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So उस टाइम से चेन बनता रहा कि like you shifted to social media Yeah. and आपको लगा ठीक है I can do something in But this. can you like spot one thing जो जहाँ से ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है ना कि यार ये चीज जब आ गई एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में कि इससे यार मुझे लगा कि अब आई विल बी गोइंग इन द डिजाइन लाइन, तो कोई टर्निंग पॉइंट डिजाइन Trajectory एकदम ऊपर हो गया. लाइक आई सेड फोटोग्राफी से स्टार्ट किया था एंड दैट डिडंट वर्क. तो एज सच मैं ऑनेस्टली बताऊं, देयर वाज नो स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट. ओके. मुझे खुद नहीं पता चला व्हेन आई शिफ्टेड like inclined towards social media and then towards branding. So खुद नहीं पता चला. When you हाँ श्योर when you venture into something, हम्म. you just have to like be reactive, हाँ, हाँ. more reactive than active at certain point of time. So उसमें जो भी हो रहा था क्लाइंट्स के साथ या फिर मार्केट में या फिर माय जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, उस हिसाब से आई केप्ट अडैप्टिंग एंड चेंजिंग. एंड ऑनेस्टली जो भी मैंने चूज किया था, सोशल मीडिया पे भी अगर मैं स्टिक करता तो भी इट वुड हैव बीन गुड. पीपल आर चार्जिंग अ लॉट फॉर सोशल मीडिया. अगर मैं फोटोग्राफी पे भी स्टिक करता तो भी इट वुड हैव बीन गुड. पीपल आर चार्जिंग अ लॉट फॉर फोटोग्राफी. अगर मैं ब्रांडिंग पे स्टिक करूं देन ऑल्सो इट इज गुड. पीपल आर चार्जिंग अ लॉट फॉर ब्रांडिंग ऑल्सो. इट जस्ट डिपेंड्स कि मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे लिए क्या ज्यादा वर्क करता है. एंड व्हाट बिकॉज हर्डल्स तो हर चीज में आएंगी. इफ आई लाइक ब्रांडिंग, हर्डल्स आती रहे, आई वोंट स्टॉप. बट इफ आई एम इनटू फोटोग्राफी, हर्डल्स आए, chances are I will stop. Yeah. So yeah. That's how you discover passion. Like आपने पता लग गया कि हाँ passionate हो Right, डिजाइन के लिए. Right. When I see designing तो मेरे ना टॉप ऑफ द माइंड दो चीजें आती हैं. आई गेस ये इम्पोर्टेंट भी होती हैं. कलर्स एंड Colours फॉन्ट्स. and मतलब मेरे fonts. को ये चीज बहुत फैसिनेट करती है जब मैं कोई डिजाइन देखता हूँ या फिर मेरे को होता है कि यार ओके दिस इज अट्रैक्टिव. तो थोड़ा सा इसको रिवर्स इंजीनियर हम करें, जैसे आपने ब्लू और ट्रस्ट की बात करी, तो हाउ कलर साइकोलॉजी वर्क्स एंड इज इट रियली इफेक्टिव. मतलब ये लिटरली लोगों को होता है या फिर एक हम सेलिंग पॉइंट के उस पे हम कर रहे हैं कि यार ब्लू है ट्रस्ट है तो हाँ, समथिंग लाइक दैट. Right. और सेम विद फॉन्ट्स, तो हाउ फॉन्ट्स आर मेकिंग सेंस. तो इन दोनों पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. So मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ. हम्म. Let's talk about McDonald's and Maggi. ओके. दोनों येलो यूज करते हैं. How Yeah. do you feel when you think about Maggi या McDonald's? क्रेविंग. Craving? Yeah. Anything else? Do you feel excited or do you feel happy? I feel happy. या. Kids way में. ठीक है. अंदर का बच्चा जाग जाता है. I can say that. हाँ. Let's talk about Fanta, Harley Davidson, JBL. हाँ, these three. Same color use कर रहे हैं? Yeah. Orange. ऑरेंज. So how do you feel? Happy or excited? Fanta, Harley Davidson, JBL. फैंटा इज वेरी जॉयफुल. Joyful? Joyful. Exact word. Hmm. Joyful. So color psychology says yellow is for happiness Hmm. and orange is for excitement. Hmm. Joyfulness. So there's a reason why these brands are using these colors. Okay. Let's talk about other colors. Chalo. Starbucks uses the darker shade of green. Yeah. That symbolizes wealth. Okay. The color Parker uses symbolizes wealth. अच्छा छोड़ो ये सब. Apple, Gucci, Zara, Sony, Prada, Louis Vuitton, all of them using black. Black is for status and authority. अब कोई coincidence तो नहीं है कि all of these brands are using black. ठीक है. आप कोई भी, और black में तो इतने अच्छे अच्छे examples मिलेंगे हमें. I think Armani also black. ठीक है. So there's a reason why these brands are using these colors. These are real life case studies. These are not just made up things. This is what's happening. बट माई पॉइंट हियर इज लाइक अगर कोई बंदा, जैसे अगर मैं एक रैंडम बंदा होता हूँ और मैं अपना लोगो ब्लैक बना देता हूँ, दैट वोंट वर्क राइट.
तो वो नहीं, it will work, why not? मतलब एक गेटवे है, लाइक हैविंग ऑल दीज सिमिलैरिटीज। हम देख रहे हैं कि ये वाले ब्रांड ये यूज कर रहे हैं, तो आई गेस वो एक गेटवे हो सकता है कि यहाँ से आपका ब्रांड ऐसे परसीव किया जाएगा, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ डेफिनेटली मैं कुछ क्लाइंट्स को, काफी क्लाइंट्स को ये बोलता भी हूँ कि आपके केस में ना लोगों पे इतना ध्यान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। डिपेंड्स ऑन द थिंग दे आर सेलिंग, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हो हाँ, इस मैं आपको वाले का? एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर सेलिंग पीवीसी, ठीक है, या इफ यू आर सेलिंग समथिंग इंडस्ट्रियल, पेंट, पेंट नहीं, पेंट Bolts हो गए, पेंट nuts, पेंट में, bolts. क्योंकि B2C बेसिकली B2C एशियन पेंट्स है जैसे। ठीक है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग इंडस्ट्रियल, हम्म, हिंजेस हो गए, ड्रॉर्स हो गए, ठीक है, या ऑटो फिर पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स हो गए, करेक्ट, नट बोल्ट हो गए। इफ यू आर सेलिंग समथिंग इंडस्ट्रियल जो कि डीलर टू डीलर जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लोगों से। इतने गंदे लोगों मिलेंगे ना आपको मार्केट में, इतने गंदे, और उनको बदलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा आप फॉर एग्जांपल, चलो किसी हम केस स्टडी को ही ले लेते हैं, किसी इंडस्ट्रियल, एक्चुअली ना कंपनीज, अशोक लेलैंड है जैसे, अशोक लेलैंड लिखते हैं, ठीक है, नट एंड बोल्ट और वो सब चीजें बनाते हैं, वो भी साथ साथ लिखते हैं, उनका उनके प्रैक्टिस लोगो कोई करते बहुत सुंदर नहीं है, बट इफेक्टिव है, फंक्शनल है, हैं। उनको सुंदर बनाने की जरूरत भी नहीं है, बट एशियन पेंट्स को जरूरत है। एशियन ठीक पेंट्स का है। लोगो इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक क्यों है। है? क्योंकि एशियन पेंट के स्टोर्स में एशियन पेंट एंड कस्टमर भी जाके खरीदता है, इट इज अ मास प्रोडक्ट नाउ, ठीक है। ठीक है। सो डिपेंड करता है, अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग आ गई यहाँ पे, थिंकिंग बैकवर्ड्स आ गया यहाँ पे। समझ गया। मेरा एक क्वेश्चन अभिषेक, जैसे आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कहा, कंज्यूमर्स एक साइड पे देख रहे हैं कि मुझे मेरे घर पे लगाना है, तो जाके देखेगा तो वो इम्प्रेस होगा ऐसे कलर से, उसके माइंड में वो चीज़ आएगी। मेरे पास साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, वो हम बाद में बात करते हैं उसमें, कि माइंड में चीज़ आए कि यार ठीक है, कि लाइक जॉय फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है उसको कलर के ब्रांडिंग के साथ उसका। ठीक है। इंडस्ट्रियल वाले बंदे को चाहिए कि मुझे प्राइसिंग, मतलब वो प्राइस इफेक्टिव थोड़ा ज़्यादा होते हैं, कि प्राइसिंग अच्छा चाहिए हमें, तो हमें प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए, हमें कलर कूलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जैसा माल मर्जी आ चाहिए जाए टाइम पे, हाँ, उनको माल टाइम और पे चाहिए और quality ये का चीज़ चाहिए। चाहिए। तो जैसे ग्राफिक डिजाइन या कोई भी ब्रांडिंग लोग करवाते हैं, तो एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स सेल्स, करेक्ट है ना? correct. वो सेल्स के लिए ही एशियन पेंट्स इतना काम कर रहा है उस पे, और बाकी दूसरे लोग कहीं और पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि एक गैप है अभी मार्केट में ऐसा, कि जो ये इंडस्ट्रियल साइड वाले लोग हैं वो भी इस चीज से इन्फ्लुएंस हो सके कलर्स से, उनके मतलब मे बी कैटलॉग देख करके वो सुंदर बना है ऐसे, मे बी वो भी उनका डिसीजन कहीं ना कहीं वो करता होए, क्या लगता है आपको इसमें? ओके, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, हम्म, कैटलॉग के केस में, जैसे आपने कैटलॉग का हाँ हाँ, एग्जांपल मैं दिया, कैटलॉग, डेफिनेटली दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कैटलॉग्स, गुड कैटलॉग्स, ओके, ठीक है। लेकिन उसका रीजन भी अगेन बैकवर्ड्स है। हम्म, लेट्स सपोज आई एम सेलिंग एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू यू, आप मेरे से ट्रकों ट्रक भर के माल खरीदने आए, वी आर टॉकिंग, डिस्कसिंग, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, एंड मैं आपको, आप अभी 4 लोगों के पास और जाके आए हो, अलग अलग शहरों के, इनफैक्ट सिर्फ चंडीगढ़ के नहीं, अलग अलग सिटीज के। अब आप मेरे पास आते हो, आपने 3-4 कैटलॉग्स देखे हैं, थोड़े देसी, ठीक है, देसी होते हैं इनके, मैं आपको एक कैटलॉग दिखाता हूँ जो कि उनसे फार बेटर है, प्राइस सेम है, मे बी उनसे कम है प्राइस, मे बी सेम है, ठीक है। मैं आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड अच्छा कैटलॉग दिखाता हूँ, आपको समझ में आता है इजीली, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू फील कि हाँ दिस प्लेस इज बेटर, यहाँ पे दिस लुक्स मोर रिलायबल, आपको ट्रस्ट फील हो रहा है, ठीक है, रिलायबिलिटी That का is the एहसास point. हो रहा है आपको, एंड इफ यू आर गेटिंग द सेम प्राइस बाकी पिछले वालों पे, जो वेंडर्स के पास आप जाके आए हो, और मेरे पास भी सेम प्राइस मिल रहा है आपको, बट मेरा कैटलॉग बेटर है, तो यू विल चूज मी। तो वहाँ इन्फ्लुएंस होएगा डिसीजन। हाँ, इन्फ्लुएंस होगा, प्लस व्हाट यू थिंक अबाउट मी आल्सो, ये पर्सनल ब्रांडिंग वाली साइड आ गया अपन। व्हाट यू थिंक अबाउट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, मैं कन्विंसिंग लग रहा हूँ आपको, मैं रिलायबल लग रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि काफी बार डील्स जो होती हैं वो बंदे के फेस की वजह से होती है, फेस वैल्यू की वजह से। इट्स नॉट जस्ट द प्रोडक्ट अलोन, इट्स नॉट जस्ट द पर्सन अलोन, इट्स नॉट जस्ट द कैटलॉग अलोन, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो यू कैन, या कैटलॉग कैन वर्क, बट अदरवाइज जो ब्रांडिंग वाला पार्ट है उसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वो मुझे नहीं लगता जरूरी है, ओके, मुझे जरूरी नहीं लगता ऑनेस्टली, मतलब कैटलॉग एक साइड पे रखें, क्योंकि तो वो उसके सेल्स का अलावा पार्ट है, कैटलॉग इज पार्ट ऑफ मेकिंग द सेल हैपन, ठीक है। ऑफ कोर्स
कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी है, they can always invest into better branding. ठीक है, they can always do that. Any brand, any company can do that. ठीक है, but I don't think it is as connected to their sales as some other brand which is selling directly to the end customer. समझ गया यार। एक मेरा क्वेश्चन एक और है वैभव, ये तेरे से भी क्वेश्चन है। हम कलर साइकोलॉजी की बात करते हैं राइट, तो कलर साइकोलॉजी में हमने जितना पढ़ा है कि ब्लू ट्रस्ट शो करता है, येलो जॉय शो करता है, ऐसे Purple spirituality. हाँ जैसे ये है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि एक ये फैड है कि ये भी एक मार्केटिंग है। मुझे ये फील होता है कभी कभी कलर साइकोलॉजी भी एक मार्केटिंग है कि टू मतलब प्रमोट, आगे मार्केटिंग का ये एक टैक्टिक था ये उस टाइम पे, और उसके बाद से फिर लोगों ने उस तरह सोचना शुरू कर दिया 70s और 80s के बाद कि सही है यार ये कलर ऐसे ही होते हैं। तो उसके बाद वो एक मार्केटिंग फैड बनते बनते फिर लोगों ने कहा कि नहीं कलर साइकोलॉजी का फर्क पड़ता है, इसमें पड़ता है उसमें पड़ता है। तो क्या फैड लगता है कि इट मतलब इट हैज ग्राउंड? रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, छोड़ो कंपनीज बिजनेसेस सब छोड़ो। हम अगर आसमान की तरफ देखते हैं या समुद्र की तरफ देखते हैं वर्सेस अगर हम एक बहुत हेल्दी फॉरेस्ट एरिया है वहां देखते हैं, हमें ग्रोथ किस तरफ फील होगी? ग्रोथ किस तरफ फील होगी? ग्रोथ वाला हमें कि लाइफ में कुछ करना है, या लाइफ में कुछ करना ही नहीं, ग्रोथ या फिर प्रोस्पेरिटी कह लो। बेसिकली इमेजिन लुकिंग एट एन एम्प्टी स्काई, सुंदर आसमान, आपको कैसा फील होगा? काम मेरे हिसाब से तो मुझे काम Peace? फील होगा। Peace हाँ, कह सकते हैं? पीस के साथ। हाँ ठीक है। इफ यू आर लुकिंग एट द यूनिवर्स, गैलेक्सी पर्पल वगैरह है ना, पर्पल कलर की जो गैलेक्सीज वगैरह दिखती हैं, तब कैसा फील होगा? आई थिंक आई विल फाइंड इट वो ब्यूटीफुल, मतलब लाइक मेरे को ये फील होगा मुझे ऐसा पर्पल से कुछ और मेरे माइंड में पर्पल नहीं, इफ यू आर लुकिंग एट द गैलेक्सी like if a cluster of stars I am looking like yeah, cluster हाँ, of stars. so I will be curious, I feel Curious, that perfect. Mysterious, हाँ, mysterious हाँ कि मेरे को अच्छा another लगा word for mysterious। curious थोड़ा सा mysterious हाँ feel हाँ होगा। mysterious की like अब ब्रांडिंग में ब्लू इज फॉर ट्रस्ट, पीस एंड कामनेस, ठीक है। पर्पल इज फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड समथिंग मिस्टीरियस, ठीक है। अगेन रेजोनेट कर रहा है। अब ये तो लाइक दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम कब से, जब से दुनिया है, राइट। ग्रीन इज फॉर ग्रोथ, अगर आप एक जंगल में हो या फिर इफ यू आर लुकिंग एट अ प्लांट, यू विल मतलब वो ग्रोथ का एसेंस यू विल बी एबल टू फील, बट वो ग्रोथ का एसेंस आपको पानी देख के नहीं फील होगा, नीला पानी देख के नहीं फील होगा, आपको पानी देख के काम फील होगा, ठीक है। सो that is a live example। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, फायर, आग। फायर को देख के कैसा फील होगा? आग लगी मतलब इन अ प्लेजेंट वे, ऐसे नहीं कि एक बिल्डिंग है आग लगी हुई है, बॉन फायर कह लो, कैसा फील होगा? कैन यू लाइक गेस, इमेजिन बॉनफायर है, सॉरी warmth, ओके वार्मथ, और आई थिंक वार्मथ ही होगा फील Cozy तो warmth। कोजी एंड वार्म वाली वाइब्स हैं इसमें। ओके, इफ यू आर लुकिंग एट स्काई वर्सेस इफ यू आर लुकिंग एट फायर, आपको स्ट्रेंथ कहाँ फील होगी या फिर आपको एनर्जी कहाँ फील होगी? फायर ना, आसमान में तो काम फील हो रहा था बहुत, फायर में एनर्जी फील होगी, थोड़ा स्ट्रेंथ फील होगी, वार्मथ फील होगी, लाइक यू सेड, ठीक है। तो सेम गोस फॉर, अब रेड कलर कहाँ यूज होता है? फूड ब्रांड्स में, स्पेशली उन ब्रांड्स में जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ। रेड इज ऑल्सो यूज्ड इन फिटनेस, जिम के आप एड्स देखोगे, क्रिएटिव्स देखोगे अच्छे अच्छे जिम्स के, दिस रेड बीइंग यूज्ड। मुझे ब्रांड का नाम नहीं याद है, इट्स एन इंटरनेशनल जिम चेन, वहाँ उसमें बहुत रेड यूज होता है। ओके, सो अगेन ये कलर साइकोलॉजी हैज नॉट जस्ट कम आउट ऑफ एनीवेयर, इट हैज कम आउट ऑफ नेचर, यू कैन से इट हैज कम आउट ऑफ हाउ वी फील व्हेन वी लुक एट दीज कलर्स। सो या इट्स फैड नहीं है, इट रियली वर्क्स। बट मैं ये क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, इट इज़ नॉट ऑल, सिर्फ ब्रांडिंग इज नॉट सफिशिएंट। आप थोड़ी बुरी ब्रांडिंग कर लो, अपना सेल्स चैनल सही रखो, आपकी सेल्स हो जाएगी, ठीक है। ब्रांडिंग इज अ ह्यूज बोनस। इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, इफ योर सेल्स, आपको पता है आपके सोर्सेज ऑफ सेल्स क्या हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कि सेल्स फिर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग के बिना सेल्स नहीं होगी। ब्रांडिंग इज अ मैसिव एडवांटेज दैट यू कैन हैव इफ यू हैव द मनी to invest in it. So जैसे हम आजकल के सिनेरियो की बात कर रहे हैं,
एंड न्यू ट्रेंड जो आजकल चल रहा है लाइक AI, न्यू AI, टर्म्स, या हाँ. so how AI is impacting the design industry, like what will be the top 3 AI tools you feel कि एक न्यूबी को यूज करने चाहिए, एंड टॉप 3 AI tools you feel कि जो एक प्रोफेशनल और नॉट अ न्यूबी, ही इज एन एक्सपीरियंस गाय, तो हाँ. उसको यूज करने चाहिए. See, AI कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और Right. क्या यूज है. कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और क्या यूज है. इम्पैक्ट ऐसे कर रहा है कि वी आर फोर्स्ड टू लुक एट बिगर क्लाइंट्स नाउ, क्योंकि अगर कोई छोटा ब्रांड है, कोई लेट्स से एक बहुत ही एवरेज नॉर्मल सी कॉफी शॉप है, ओनर के पास टाइम है, कुछ चीज़ें वो AI से खुद कर सकता है अब, ठीक है, जैसे बेसिक सा क्रिएटिव बनाना है सोशल मीडिया के लिए कर सकता है. लेकिन वहीं आप बात करो, एक कॉफ़ी ब्रांड है जिसके 3 आउटलेट्स हैं इन लेट्स से ट्राई सिटी, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको चाहिए आउटसोर्स करना है, उसको चाहिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसी टाइम में मैं ज़्यादा कमा लूँगा, इस टाइम में तू मेरे से पैसे पकड़ इतने महीने के, क्वार्टरली रिटर्नर ले और काम देख ले, ठीक है. सो इट्स अ गुड थिंग. हम वैसे भी उसी लेवल के क्लाइंट्स देख रहे थे पहले भी, बट अब वी आर फोर्स्ड टू वैसे ही देखने. इम्पैक्ट ये है कि यू हैव टू चेंज हाउ यू व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू आर लुकिंग एट. If you're talking from my agency's perspective or a design agency's perspective, small business owners के लिए benefit है कि they don't really have to hire designers anymore. So I'm talking about very small business owners. ठीक है. Okay. I'm talking about let's say for instance एक physiotherapist है, he or she can easily create certain basic graphics herself. इसका आपने दूसरा क्या पूछा था, यूज क्या है? हाँ, tools. There are many tools. हाँ, top 3 tools like. See, Hagen is a very good tool. Okay. Hagen video creation. हाँ, and you can use FreePic a lot for voice, for images, for generative images, Okay. for a lot of things. Okay. बहुत सारे टूल्स हैं. आपको वीडियो बनाना है, आपको ऑडियो जनरेट करनी है, आपको पिक्चर चाहिए, आपको अपना टॉकिंग एवेटार चाहिए, देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स. एक टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड आपको चाहिए क्या, आपको टूल मिल जाएगा. It's like more about कि as a designer आपको सबसे ज़्यादा help. As a designer we sometimes use we generate images. मान लो फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है एंड वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें रियल रेंडर्स चाहिए, ठीक है. तो उस केस में भी हम बताते हैं AI को कि हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बन रहा है, उस हिसाब से इट जनरेट्स इमेजेस फॉर अस. फोटोशॉप में मैनिपुलेशन होती थी पहले, अभी भी होती है. फॉर इंस्टेंस कुछ एड्स आपने देखी होंगी, जैसे ये कप है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसके अंदर से कुछ निकलता हुआ आए, मेरे ब्रांड मेरे कस्टमर कुछ भी आए, ठीक है, तो वो फोटो इमेज मैनिपुलेशन है वो, तो ये AI के थ्रू इजीली किया जा सकता है. सो टूल्स ये हैं. प्लस एक ये बड़ा कॉमन मिथ है कि AI विल रिप्लेस डिजाइनर्स या एजेंसीज. ऐसा नहीं है. AI इज नथिंग बट अ गुड डिजाइन असिस्टेंट टू अस. उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं दोगे कुछ नहीं करेगा, एंड सही प्रॉम्प्ट देना इज अ वेरी like not so easy skill in itself. Plus prompt देने के बाद भी there's a lot to do. You have to work on the generated content या image या जो भी है, you have to further work on it. उसके साथ में you have to combine it with other AI tools. उसके बाद you have to convey it to the client, take approval, schedule, whatever. बहुत सारे steps हैं. So that thing is only a very small part of a very big process. So AI is good, but abhi to it is not replacing anyone. Got it. Apart from like the digital world, what else are you into? इसके अलावा आप inspirations a lot of things apart from business. So I'm trying to be fitter. Okay. I'm parties भी अब बहुत करने लगा हूँ. पहले I used to work 9 to 9, even 9 to 11. Okay. Even at this place एक टाइम होता था जब यहाँ पे मैं आता था, and I used to sit here. सबसे पहले आता था, सबसे लेट जाता था, घर जाके और काम करता था. बर्नआउट होता था बहुत गंदा, ठीक है. बर्नआउट में फिर क्या होता था कि मैं ओवरवर्क करूँ फॉर लेट्स से 1 month, फिर एक ऐसा 3 दिन का टाइम आता था जब मेरा मन ही नहीं करता था काम करने का. सो बर्नआउट वाला फेज भी बहुत बार बर्नआउट आया, तो अब मैं रोज ब्रेक लेता हूँ. इफ आई एम फीलिंग लो आई गो टू द जिम. If मैं even मेरे page पे I promote fitness a lot because of this only. For businesses also, for service sellers, I feel कि fitness is extremely important.
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट्स ट्रू. मतलब एक स्टडी थी कि स्पेशली ऑन मेल्स की मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पैक्टेड from gym and like fitness Absolutely. than therapies and all. तो ये चीज see therapy is very important if you have any baggage, but fitness ना एक ऐसी चीज है कि even if you don't need therapy, even if you are थोड़ा सा भी आपको low feel हो रहा है, if you go to the gym आपको immediately better feel होगा. Immediately. True. Also it makes your mind sharp, you are able to take better decisions at work. ठीक But है. I think ये वो भी ये एक फैक्टर आया था जिनको मजा आता है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है बिजनेस में जिम में जिम में क्योंकि हाँ. कोई ऐसे रैंडम कुछ लोग होते हैं जिनको जाके मजा ही भी नहीं आएगा, बट हम कुछ हैं जो वी आर सो मच कि हाँ ये जाके वी लिफ्ट वेट्स एंड एवरीथिंग विल गो अवे, बट ये हर एक पे आई गेस एप्लीकेबल भी नहीं होता. मतलब मेरे को लगता है किसी वे एक्चुअली व्हेन यू फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भाग रहे हो ना, सो जो केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, आई एम नॉट लाइक एक्सपर्ट इन कॉन्सेप्ट, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, अ थेरेपिस्ट टोल्ड मी दिस. ये मैं नहीं बोल रहा, एक थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था ये कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, जिम नहीं जाना 1.5 घंटा कोई बात नहीं, 3 मिनट सिर्फ स्प्रिंट कर लो. सीरियसली 3 मिनट बहुत तेज भाग ले. उससे क्या होगा, योर हार्ट बीट विल बिकम वेरी फास्ट, आप ऑक्सीजन पूरा पंप होगी, एवरीथिंग. तो यू इंस्टेंटली फील बेटर, चाहे लाइफ में जैसी मर्जी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, बिजनेस में दिक्कत चल रही हो, पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, डू दिस यू विल फील बेटर. सो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, या फिटनेस इज द नंबर 1 थिंग. थोड़ा बहुत पार्टीज कर लेते हैं हम. एंड या आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग आल्सो नाउ. पहले मैं बिल्कुल वर्कहोलिक था, ट्रैवल नहीं करता था, अब मैं ट्रैवल करते करते भी काम कर लेता हूँ. नाइस. सो या आई थिंक एक स्टेज आता है व्हेन यू वांट टू डू अदर थिंग्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम वर्क, व्हाइल स्टिल यू नो मैनेजिंग योर वर्क. वो एक स्टेज होता है कि यू आर मिसिंग आउट मिसिंग आउट से ज्यादा दूसरी चीजों से, मिसिंग आउट से ज्यादा you start enjoying those parts of life also, and if you document it, you build a personal brand. Yeah, that is nice. और जैसे हम जिम की बात कर रहे थे and like it's building muscles and you know taking the reps, तो I think ऐसी डिजाइनर भी reps लेता अपने and get better at and get stronger at the muscle of being a better designer. तो see designers are available at all costs. अब जैसे हमने बात करी, correct. एक्सपेंसिव भी है मार्केट में, चीप भी है. बिल्कुल. तो what is the business impact on sales of an expensive logo, of an expensive design versus a cheap one? A normal one. Again it depends on the business. Okay. क्या है, क्या प्रोडक्ट बेच रहे बट हैं, क्या जैसे सर्विस. लाइक मतलब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ. मैंने इसके बारे में सुना था, योगा बार की ब्रांडिंग के बारे में सुना था. तो हाउ दे वर स्टैंडिंग आउट बिकॉज सारे बहुत बोरिंग थे एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, है ना. योगा बार का आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया. हाँ. अब कस्टमर की तरह सोचो. हाँ जी. आपको प्रोटीन चाहिए, आपको स्नैक चाहिए, ठीक है. 2 तरह के कस्टमर हैं, एक जिनको एक्साइटिंग सा प्रोडक्ट चाहिए, एक जिनको वैल्यूएबल जिनको रिलायबल प्रोटीन सोर्स चाहिए. ठीक है. अमूल हैज स्टार्टेड इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट्स नाउ. हाँ, एक वहीं पे एक रणवीर सिंह का नया ब्रांड आया है, व्हाट्स द नेम, सुपर यू. राइट. बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, बहुत बहुत अच्छी. देयर टाइपोग्राफी, देयर फॉन्ट्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी नाइस. बट मैं अभी फिलहाल अमूल के कंज्यूम कर रहा हूँ, और बाकी जो ऑन वगैरह का होता है वो तो चलो अलग है. मैं अमूल क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ, बेटर डिजाइनिंग नहीं है उसकी, अप्रोप्रिएट है इन द सेंस कि इमेजिन एक कंपनी है जिसको देख के आपको लग रहा है यार ये 60 साल पुरानी कंपनी है, क्योंकि डिजाइनिंग उतनी फैंसी नहीं है. ठीक है. अब प्रोडक्ट है उनका फूड रिलेटेड, या मान लो घी है, या फिर घी हो गया, आटा हो गया, ऐसी चीजें हो गई. वहां पे आपको चाहिए कंपनी पुरानी हो, डिजाइनिंग गंदी हो. ठीक है, आपको चाहिए पुरानी कंपनी, ट्रस्ट. हाँ. वहीं पे हम कुछ बाय कर रहे हैं, हम घड़ी बाय कर रहे हैं, या फिर हम एक कुछ फैंसी बाय कर रहे हैं. इवन कार्स में भी होता है ना, ट्रस्ट होना चाहिए. लाइक मतलब जैसे सुजुकी के लोग जा रहे हैं कि ओके यार ये साथ देगी, या ऐसा कुछ होता है, टोयोटा के साथ होता है. राइट. तो अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमें चाहिए कि नया हो, तो हमें चाहिए फैंसी मॉडर्न ब्रांडिंग, है ना. अगेन फॉन्ट्स भी होते हैं उनके, फॉन्ट्स भी होते हैं, करेक्ट. कई बार हमें जानबूझ के पुराने फॉन्ट्स यूज करने होते हैं.
अभी we were designing, मैं नाम नहीं ले सकता, we are designing on this for this brand जो कि ऑयल्स, कोई हर्बल ऑयल्स हैं वो सेल करते हैं. ओके तो उसमें हम जानबूझ के डिजाइनिंग ऐसी करेंगे कि कंपनी पुरानी लगे, कंपनी नहीं है. Oh wow. ठीक है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, cheap or expensive designing Business में impact and sales business impact, impact is again उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा when we are walking backwards. But cheap designer और expensive designer में यही फर्क है. Cheap designer will always try to make something look more beautiful. Expensive designer will expensive नहीं, I would say a good designer will understand कि कैसा बनाना चाहिए, हमें प्रीमियम बनाना चाहिए या अफोर्डेबल बनाना चाहिए. He will understand that and उसके बाद he will design. वो सीधा ये नहीं कहेगा मैं आपके लिए बहुत सुंदर डिजाइनिंग करूँगा ना, वो ये बोलेगा ही नहीं कभी. So that answers your question. understanding the need of their need of Correct. but like जो मेजर वो है कि एक्सपेंसिव, मतलब इज इट नेसेसरी कि एक अच्छा डिजाइन ही होना चाहिए? लाइक अगर जैसे अब हमने ये एग्जांपल लिया, जैसे आपने ऑयल वाले की बात बताई कि वो थोड़ा सा बैक स्टेप हो रहे हैं कि हम ओल्ड दिखें थोड़ा सा, है ना, पोजीशन ऐसा करना चाह रहे हैं अपने आप को. Right. तो एक चीप जो लोगो है या फिर जिसने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो उसको इस पे फोकस ही नहीं करना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हो? मतलब अगर इफ आई एम स्टार्टिंग आई हैव टू फोकस ऑन ऑल अदर थिंग्स एंड डिजाइन शुड नॉट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. आई एम सेइंग कि इट शुड नॉट बी द ओनली प्रायोरिटी. ओके. हाँ, इट शुड नॉट, आपका सारा फोकस उस पे नहीं जाना चाहिए. आपका मेजॉरिटी फोकस आपकी सेल्स पे जाना चाहिए. एंड जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा लोगो हो, जरूरी ये है कि बुरा ना हो, जरूरी ये है कि डिसेंट लगे, बुरा ना लगे. काफी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लोगोस बहुत सिंपल मिलेंगे आपको, सिर्फ फॉन्ट होगा लिखा हुआ, कोई आइकन नहीं, कोई फैंसी एलिमेंट्स नहीं, कुछ नहीं. दैट इज बेटर देन अ बुरा लोगो, देन अ ओवरली डिजाइंड लोगो. सो आई वुड से कि इसको ओनली प्रायोरिटी मत बनाओ. इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस व्हिच इंक्लूड्स ब्रांडिंग, you look at sales only. And what I would do if I started again would be, in चीजों में I would reinvest, I won't invest, I would reinvest what I would earn out of the business. okay later on second priority या third priority there. हाँ, starting में आपका लोगो बस बुरा ना लगे बस. अगर if you don't have the capital to invest, if you have then perfect, करो invest. समझ गया. आई फील कि जब एक अच्छा डिज़ाइन होता है, एक अच्छा डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, तो वो हमेशा एक एक्सपीरियंस के साथ आता है. एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एन इंस्पिरेशन, कि आज एक इंस्पिरेशन होती है उसमें, राइट? सो व्हाट आर योर इंस्पिरेशंस एंड हाउ मच इंस्पिरेशन मैटर इन ग्रेट डिज़ाइनिंग? Okay, see, experience मेरा ये है कि I've worked with a lot of clients. Inspiration I take from जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है who wants to sell t-shirts. I would understand कि किस सेगमेंट को कैटर कर रहा है, फिर मैं इंस्पिरेशन लूंगा कि मार्केट में कौन सा ब्रांड है या कौन से ब्रांड्स हैं जो सेम सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं और उनकी डिजाइनिंग कैसी है. तो as a designer, this is how actually I would differentiate experience और inspiration. Inspiration में लूंगा leading brand से for my client, and this is my experience कि I know कि ऐसे inspiration लेनी है if I have to design for a brand of any product or service. But inspiration different भी हो सकती है, like inspiration can also be random. It can be, but it shouldn't be. I think मतलब जैसे I guess Apple की story थी that Steve Jobs took calligraphy and wanted to put better fonts in Apple's products. तो अब वो random एक आर्ट फॉर्म से लेकर उसने अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ घुसा दी. तो मतलब ऐसे रैंडम इंस्पिरेशंस भी होती हैं. मतलब ये भी चीज़ हो सकती है कि आई एम गोइंग ऑन अ वॉक एंड मेरे को कुछ दिखा, हाउ अबाउट आई कनेक्टेड टू, मतलब ऐसा कुछ होता है आपके साथ? सी, एप्पल की स्टार्टिंग में लोगो अच्छा नहीं था जिन्होंने देखा है, बट हो सकता है उस टाइम में शायद लोगों को अच्छा लगता हो, बट एप्पल प्रोडक्ट की वजह से बना है. ठीक है, अब उनका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि ऑब्वियसली एप्पल तो अनबीटेबल ब्रांड है. एप्पल तो इज लाइक the example we use when we are into branding, है ना. So
Apple became Apple because of the product, and उन्होंने जो आप बोल रहे हो कि it was random कि he had a very personal idea, उसको उन्होंने ब्रांडिंग में उतारा, उसको उन्होंने प्रोडक्ट में भी उतारा, तो या that was a good thing. But आज की डेट में सी हम गलती क्या करते हैं कि हम सीधा Apple तक जाते हैं and we compare our brand. We are not Apple. I think 99% of chance ये है कि we will not be Apple. ये अगर मेरा कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, he is not going to be Apple. ठीक है. So what is working in the market and what the customers are needing, again working backwards, we have to follow that. Apple is an exceptional case study, nice. right? So But जैसे एप्पल की स्टोरी होगी, मतलब मेरे को लगता है ये चीज़ें ये डिटेल्स जो होती है ना, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होती हैं, वो मैटर करती हैं. कि जैसे उस दिन आई वाज हियरिंग अबाउट द प्रोडक्ट की उनका जो वो पैकेजिंग है वो बहुत आराम से खुल जाती है. आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट बहुत छोटा सा है, बट वो कस्टमर के एक चीज सॉरी मैं करेक्ट करना चाहता हूँ. अभी मैंने कहा एप्पल जैसे प्रोडक्ट की वजह से बना है, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, द काइंड ऑफ मार्केटिंग मैसेजेस दे हैड, द काइंड ऑफ मिनिमल messages they had. उनका एक जो MacBook आया था तो it was something like the thinnest laptop that exists on the planet, शायद ऐसा कुछ था. So the kind of minimal marketing messages that they had, and वही same thinking उन्होंने अपने designs में उतारी. So yeah, it was a combination of very minimal branding, marketing, and of course जो उनका product है वो तो exceptionally innovation तो बहुत ज़्यादा थी ही. So yeah, please continue. But back to like inspiration, like आप कहाँ से inspiration drive करते हो? Is it like ऐसे random चीज़ों से आती है inspiration, or is it not? Random चीज़ों से. What was your randomest like inspiration? यार इधर से मैंने ये बना दिया, मतलब वो कितना fun होगा. कोई ऐसा एग्जांपल कि मेरे को लगा कि यार I can give you one example. मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, राइट. मैंने उसको देखा यार, मैं कहा ये डिजाइन में कुछ हो सकता है. आई एम अबाउट आर्किटेक्चर इंजीनियर, तो फिर मैंने वो बना दिया. तो मैंने मतलब किसी को ऐसा आइडिया आया और किसी ने वो बना दिया. तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको भी एक आया हुए यार, ये तो यहाँ बन सकता है. बहुत डिजाइन होते हैं नेचर इंस्पायर्ड. सो एक अभी रिसेंटली हमने एक लोगो बनाया फॉर अ साइकोलॉजिस्ट. तो उसमें हमने स्माइली होती है ना ऐसे, हाँ 2 डॉट्स और वो कर्व ब्रैकेट. हाँ. तो उस स्माइली के बेसिस पे हमने एक लोगो बनाया है जिसमें जो कर्व है वो ब्रेन की शेप में है और स्माइलीज वो आंखें हैं. सो अच्छा, तो स्माइली में 2 डॉट्स और वो कर्व नहीं होता ब्रैकेट. हाँ समझ गया. तो वो ब्रैकेट हमने ब्रेन की शेप दी है. ठीक है. तो मे बी दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. हाँ कि मतलब यहाँ से सो देयर हैज टू बी इनडायरेक्ट कनेक्शंस जब हम लोगो डिजाइन करते हैं. ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट के लिए है, द पर्सन इज ऑफरिंग पीस, हैप्पीनेस, यू नो, हीलिंग. तो स्माइली सीम्स एप्रोप्रिएट, दैट्स व्हाई. डू यू रीड बुक्स? अभी कम किया है मैंने, बट पहले आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स मार्केटिंग पे और डिजाइन पे. उतनी नहीं, मार्केटिंग पे एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे प्लस आई हैव रेड सम बुक्स. लाइक नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रेगुलरली अपने आप को अप टू डेट, मतलब लाइक बुक्स हो गया, कंटेंट हो गया, उससे भी आप अप टू डेट रखते हो? अप टू डेट रखने के लिए नेटवर्क, मतलब टेक्निकली अप टू डेट तो इज अ डिफरेंट थिंग. इन स्किल्स आई एम टॉकिंग अबाउट. in skills I stay updated on social media. I follow people who are into the same industry. ठीक है, Chris Do, I follow him. Every designer. Correct. Anik Jain है, he's an Indian designer. He's wonderful. So I take inspiration, not inspiration, to stay up to date technically. क्या चल रहा है, काफी चीजें पता चल जाती हैं. There are other people also. So yeah, I follow them on social media and it's entertaining also. प्लस अपडेटेड भी रहते हैं. Exactly. Okay. जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना पहले, लाइक नोइंग, अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं उसका ये देखता हूँ कि उनकी जो ऑडियंस है वो और क्या मतलब कंज्यूम कर रही है और वो कैसे डिजाइन अपना दिखा रहे हैं. तो आई थिंक ये वाला कनेक्शन जो होता है, जैसे इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं आपने, लीडिंग ब्रांड से एक तो आप लेते हो लाइक टॉप ब्रांड से, और जो प्रोडक्ट कोई और यूज कर रहा है, लाइक इफ कह लो लाइक टॉक अबाउट हिप हॉप, तो हिप हॉप का प्रोडक्ट जब बैगी क्लोथ्स एक सेगमेंट यूज कर रहा है, देन बोट इज आल्सो टारगेटिंग देम कि हिप हॉप लिसनर्स हैं. तो आप कह रहे हो कि अगर आप बोट के लिए डिजाइनिंग कर रहे हो तो यू विल सी कि हाउ दे आर पुटिंग, हाउ बैगी क्लोथ्स कैन मार्केट, मतलब वो चीज. हाँ या सो अगेन लाइक कंपेटिटर्स या लीडर्स, हम क्यों उन्हें देखते हैं, उसका रीजन यही है कि we understand कि अच्छा people are liking this,
दैट इज द रीजन. सो व्हाट यू आस्किंग इज कि हम इंस्पिरेशन या हम रेफरेंसेस वहाँ से लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ स्टडी ऑफ द मार्केट कि दिस इज वर्किंग वेल इन द मार्केट. हमारा कस्टमर और इनका कस्टमर सेम है एंड इनके कस्टमर्स को यानी कि हमारे कस्टमर्स को ये चीजें पसंद आ रही हैं. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी डू दिस. आई थिंक बेटर देन दिस इज, मतलब मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज बेटर देन कॉपिंग योर कंपेटिटर्स. दिस इज नॉट अबाउट कॉपिंग. मतलब एक वे से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट. तो कंपेटिटर से अगर मैं बोट हूँ तो मैं JBL को देखूँ, इससे बजाय अगर मैं लाइक बैगी क्लोथ्स वाली कंपनी से देख रहा हूँ, आई थिंक वो मेरे को बेटर इंस्पिरेशन लगता है. आई डोंट नो, हमारा मोटिव ये है कि हम सेम ऑडियंस के प्रेफरेंसेस समझ पाए. बस इतना ही मोटिव है हमारा. चाहे हम कंपेटिटर्स को देखें, चाहे हम सिमिलर किसी प्रोडक्ट के कस्टमर्स को देखें, हमें बस उनकी प्रेफरेंसेस देखनी है मार्केट में. ये बहुत अच्छा आंसर है. लाइक एवरी ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट या यही आंसर होगा उसका मेन, कि अपने ऑडियंस की प्रेफरेंसेस पता हो हमें, उस हिसाब से हम अपनी ब्रांड की स्टोरी और वहां से शुरू करें उसको रिवर्स. क्योंकि वी मे थिंक दैट दिस वुड वर्क, बट यू नो थिंकिंग और अज्यूमिंग से बेटर है कि आप एक्चुअल डेटा को स्टडी करो, एंड दिस इज डेटा. सो दैट्स व्हाई वी डू दिस. who should not hire you as in designer or an agency? So see, so the kinds that I don't, the kind of clients that I don't like to have, like as in, मतलब मैं ये कहूँगा कि it's a consulting that कि आपको कि you don't need us right now वाला maybe. जिन प्रोडक्ट्स में ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है उतनी, इंडस्ट्रियल Industrial, प्रोडक्ट्स, दे कैन हायर मी फॉर बिल्डिंग देयर कैटलॉग्स, बट ब्रांडिंग के लिए इफ दे, आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड द सर्विस टू देम इफ दे वांट एन एक्सटेंशन टू देयर, अगर उन्हें चाहिए ये ऑफ कोर्स, बट दे डोंट नीड इट मच. अच्छा, इफ देयर इज अ कंपनी जो कि लेट्स सपोज आई एम चार्जिंग 70,000 फॉर अ लोगो, पूरा जो हम ब्रांडिंग करते हैं. ओके. एक कंपनी है जिन्होंने मार्केटिंग बजट सेट किया हुआ है, एक स्टार्टअप है मैं कहूँगा, मान लो पर्सनल ब्रांड है कोई, जिनका मार्केटिंग बजट है सिर्फ 4-5 लाख का. वो मुझे 70,000 दें ब्रांडिंग पे, इट डजंट मेक सेंस. ठीक है, तो उनके लिए मैं या तो सिर्फ लोगो बनाऊंगा, पूरा ब्रांडिंग नहीं करूंगा, या फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप सिंपल उन्हें आइडिया दूंगा कि ऐसा लोगो बना लो फॉन्ट बेस्ड, एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग सेल्स, बाद में जब आपको ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी तब आना मेरे पास. जैसे होता है ना, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना दिया एंड लाइक यू कैन गेट गो, एंड उसके बाद बस उसमें एक लिमिटेशन होती है, रीब्रांडिंग में कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं. यू कांट चेंज इट कम्प्लीटली, यू कैन अपग्रेड इट, you can tweak it, you can't change it completely, क्योंकि people start recognizing you with what you're using already. So and I think as a whole भी बहुत ज़्यादा कभी-कभी सेटबैक्स मिलते हैं, जैसे जैगुआर को मिले थे आई गेस अभी, और मिंत्रा को मिला था, एंड कुछ को तो बहुत सटल चेंजेस होते हैं, लाइक गूगल का बहुत सटल चेंज हुआ, बट लोग कहते हैं अरे यार क्या. किया को मिला था बहुत ज़्यादा, किया को it is not readable anymore after the change. okay so के एन पढ़ा जा रहा था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी बहुत ज्यादा, बट इट लेड टू अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी. या दैट्स ट्रू. सो डू यू फील कि जैसे एप्पल जैसा ब्रांड है या कोई ब्रांड है, अगर जिसका प्रोडक्ट बेस स्ट्रॉन्ग है, राइट, सो ब्रांडिंग उनकी सेल्स को एम्पलीफाई कर देता है, तो ये कितने मतलब आपको सही लगता है, या लगता है कि नहीं ऐसा भी नहीं होता? ब्रांडिंग सेल्स को हेल्प करता है लार्जली. ब्रांडिंग इस सेंस में हेल्प करता है कि it starts resonating, your target audience starts resonating with your product or service. एक बात करते हैं जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कलर्स की. Now we are not talking about color psychology, we are talking about industry standard colors. Immigration में red color is very prevalent. I think white is also red and white, है ना? जबकि it is kind of against color psychology. Okay. क्योंकि immigration में you need trust, you don't need that fire or energy उतना. Red also shows a little bit of danger. Immigration में danger ये है कि आपने पैसा भर दिया, वीजा नहीं लगा, या ऐसी दिक्कतें. तो it is against brand psychology, but it is what is working in the industry.
सो दैट इज टू बी यूज्ड. ठीक है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कलर्स और भी होते हैं, जैसे कि मेडिकल में टर्कोइज ब्लू, टर्कोइज ग्रीन इज यूज्ड लार्जली. मुझे ध्यान नहीं आ रहा. फोर्टिस, मैक्स और Health अपोलो. card, I guess. Also. Health card also, Mm-hmm. yeah. Apollo also, I think. So they're using these colors. Also, these are the colors of healing. Now, this is according to brand psychology. Turquoise, sea green, turquoise blue, turquoise green. These are the colors of healing. तो वो use होते हैं. So yes, good branding makes your customers feel how they should be feeling if you need the sale to happen. Okay. ठीक है. So it helps your sales, but it does not create your sales. सेल्स आपकी सिर्फ गुड ब्रांडिंग से नहीं आएंगी, बट आपकी सेल्स को हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी इफ योर ब्रांडिंग इज इन प्लेस. Nice. So yes. We used to read about it in school, I guess. Branding is your silent salesman. Silent what? Silent salesman. Salesman, yes, definite. So yeah, I guess Definite. that fits. It is silent. It is very subtle. It is very silent. Yeah. So we have this segment called Rapid Fire Round. It's combination of fringe and rapid fire. So Okay. a little segment. You have to answer in one word or one sentence max. ठीक है. So it's kill, marry, hook up. Sorry, say again. Who would you kill? Who would you marry? Or who would you hook up with? Logos, packaging, and social media. Kill, marry और hook up. Yeah. हाँ. Marry logo. Okay. Hook up. फिर से बताना options. Logos, packaging, and social media. Hook up with packaging. Marry logo. And kill Social media. media, yeah. Okay, got it. गलत बात है, हमारे सामने यहाँ पैसे मस्ती कर रहे हो. अच्छा, what's the best advice you have ever got and what's one worst advice you have ever got? Okay. यार मुझे याद नहीं आ रहा है अब. देखो, बेस्ट एडवाइस स्केल करो हायरिंग करके. बेस्ट एडवाइस. वर्स्ट एडवाइस, मुझे वर्स्ट एडवाइस अभी मिली नहीं है. कोई बुरी एडवाइस देखो. That is कोई बुरा एक्सपीरियंस हो ये लगा वहाँ पे करना Not चाहिए asking था. for advance. वो Not asking for advance. you वर्स्ट should. एडवाइस वुड बी कि टिक के काम करो. Okay. Okay. ये है worst सही है. advice. What do you struggle most right now with? Something you are Hiring, struggling with? finding good designs. Okay. Nice. Would you lose all your skills and experience or lose your portfolio and client work? Portfolio and client work. Okay. That is a great answer. Experience and skills matters. हाँ. One superpower you wish you had. Sorry. Superpower. सुपर पावर. बिना नींद के काम कर पाना. Workaholic. You will be like 24 hours a day. You will be work. नहीं, फिर मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा. Okay. अच्छा वही मैं कहने या लगा एक था. और सुपर पावर. You don't need no sleep as hangovers. much. No hangovers. No anger. No hangovers. हाँ, ये सुपर पावर. Okay, so last question. One habit you think everyone should follow? Networking. Oh, okay. कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, नेटवर्किंग. Networking is the key. Networking can become extremely strong source of revenue for you. Not just revenue, hiring also, revenue also, referrals, everything. Network जितना ज्यादा कर सकते हो. Okay. Got it. So Abhishek, नेटवर्क करने के लिए तुम्हें टीम चाहिए जो बैकएंड में तुम्हारा काम कर रही है, तुम्हें नहीं करना पड़ रहा, और तुम बिल्ले नेटवर्क कर रहे हो, सेल्स लेके आ रहे हो और टीम को दे रहे हो. yeah, that's important. I think Abhishek, you have like figured these things out well. जो हमने आज सीखी कि you should be aware about how the client Wants. needs Yeah. and wants and what you should deliver on, and I think take of the day would be walking backwards. exactly walking backward. I feel like reverse engineering is the Reverse right word. Reverse I guess. engineering, yeah, walking backwards. even in designs, even in business, मतलब even हर in, एक चीज business largely, not just design, business. yeah. Like it was lovely talking to you because Likewise. I feel हाँ कि I feel मैंने बहुत सीखा है डिजाइन के बारे में, कलर Color साइकोलॉजीज, टाइपोग्राफी और ऑटो पार्ट्स वालों को डिजाइन का इतना जरूरत नहीं है, जो विच इज ट्रू जैसा आपने एक्सप्लेन किया है. सो इट वाज लवली अभिषेक. या थैंक यू सो मच Same फॉर here, टेकिंग same here. आवर Thank you टाइम. for having me here. It was good, very good. Looking forward to कोई और भी, we'll look forward to more such हाँ, conversations. sure. So guys, See see you in you. the next episode. Bye bye. Take care.